হ্যালো স্টুডেন্টস, ক্লাস 6। তো তোমাদের এই বইটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে মডার্ন ম্যাথমেটিক্স, আর হচ্ছে রাইটার হচ্ছে কেশবচন্দ্র নাথ। এই বইটার ভিডিও করে আমি স্টার্ট করে দিয়েছি। তো আমার হচ্ছে টার্গেট হচ্ছে এই টোটাল বইটার ভিডিও তোমাদের একদম তৈরি করে দেওয়া, যাতে করে তোমরা ইউটিউব ভিডিওর মাধ্যমে অঙ্ক শিখতে পারো। তোমরা যদি এই চ্যানেলে যদি নতুন হও তাহলে এই চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং পাশে থাকা অল নোটিফিকেশন অন করে রাখবে। মানে ভিডিও পরপর আপলোড করার সাথে সাথে তোমরা যেন অবশ্যই পেয়ে যাও। ঠিক আছে, তো আজকের দেখো এক্সারসাইজ 6 এর সিম্পলিফাই নাম্বার 7। এর আগের ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখেছো। তো আমরা বদমাশ রুল অনুযায়ী এগুলো করব। তো অঙ্কটা প্রথমে লেখা ঠিক আছে নাকি দেখো, যে 3 পূর্ণ 5-এর 6 ডিভিশন 11 1/2 ইন্টু 13/15 ডিভিশন 26/35 অফ 1 পূর্ণ 1-এর 2 1 পূর্ণ 2-এর 3 অফ 1 পূর্ণ 1-এর 6। তাহলে ইউজিং বদমাশ রুল, তাহলে প্রথমে যে মিক্স ফ্রাকশন গুলো আছে মানে মিশ্র ভগ্নাংশকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে প্রকাশ করো। 318, 18 5 কত হয়? 23, 23/6। ঠিক আছে। ডিভিশন 11 22 23/2 ইন্টু 13/15 ডিভিশন 26/35 অফ 3 1 3 2 5 5 3 অফ 6 1 6 1 7 7 6। তাহলে এইভাবে প্রথমে লিখবো যে মিশ্র ভগ্নাংশগুলিকে অর্থাৎ মিক্স ফ্র্যাকশনগুলিকে ইমপ্রপার ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করব। এবার দেখো, তো তোমাদের প্রথমে আমি বাংলাতে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি, তারপরে তোমাদের মানে হিন্দিতে ব্যাখ্যা করে দেবো। ইংলিশ আর হিন্দি একসাথে মিশ্রিত করে ব্যাখ্যা করে দেবো। তো দেখো, প্রথমে বাংলাতেই ব্যাখ্যা করছি। তো দেখো, তাহলে এখানে প্রথমে আমাদের বদমাশ রুল মানে অনুসারে বদমাশ রুলটা কি আছে? ভি বি ও ডি এম এ এস। তাহলে প্রথমে আমাদের এই সিম্পলিফাইয়ের মধ্যে ভি এর কাজ নেই। ভি মানে হচ্ছে ভিনকুলাম মানে বার, যে মানে যেটাকে বলে। তারপরে বি ব্র্যাকেটেও নেই। ও অফ আছে, তার মানে প্রথমে ও ফর অফের কাজ করতে হবে। তাহলে অফের কাজ করতে গেলে এখানে 23/6 ডিভিশন 23/2 ইন্টু 13/15 এভাবে লিখে দেব। আর অফের কাজগুলো করতে গেলে তাহলে টোটালে একটা ব্র্যাকেট দিয়ে 26/35 ইন্টু 5/3 ইন্টু 7/6 এভাবে লিখে দেব। তার মানে এই ব্র্যাকেটটা দেওয়া মানে হচ্ছে যে অফের কাজটা আগে করতে হবে। তাহলে এখানে কাটলে কি হবে? 7 5 35, 5 5 কাটা, আর এখানে হচ্ছে 3 2 6 আর 13 26। তাহলে এখানে কি হচ্ছে? 23/6। আচ্ছা, ডিভিশন 23/2 ইন্টু 13/15 ডিভিশন, এখানে উপরে আছে 13 আছে আর নিচে পড়ে আছে 3 3 9। এবার কিন্তু অপের কাজ শেষ হয়ে গেছে, এবার কিন্তু আমাদের করতে হবে ডিভিশনের কাজ। মানে ডিভিশনের কাজ করতে গেলে তাহলে ডিভিশনটাকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, অর্থাৎ গুণ করে দিতে হবে। হ্যাঁ, গুণ করে উল্টে দিতে হবে। তাহলে 23/6 আর এখানে মানে ভাগটাকে গুণ হয়ে গেলে 2/23 হবে ইন্টু 13/5 13/15 আর এখানে ইন্টু করে দিলে 9/13 হয়ে যাবে। তাহলে দেখো, এখানে সবগুলো মাল্টিপ্লাই সাইন হয়ে গেছে। তাহলে এখানে 13 13 কাটা, 3 3 9, 3 5 15 আর 2 3 6, 23 23 কাটা আর 3 3 এখানে কাটা। তাহলে এখানে কি পড়ে আছে? অলরেডি উপরে কিছু নেই, তার মানে 1 পড়ে আছে আর নিচে 5 পড়ে আছে। এটা আনসার। ঠিক আছে, আনসার বইয়ের লাস্টে অবশ্যই দেওয়া আছে। এক্সারসাইজ 6 এর 7 এর দাগ। এক্সারসাইজ 6 এর 7 এর দাগ দেখো, আনসারটা মিলিয়ে নেওয়া যাক।
1/5ই আছে, 1/5ই আছে আনসার। তাহলে অঙ্কটা আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে। আমি বাংলাতে ব্যাখ্যা করে দিলাম ইউজিং বদমাস রুল। ঠিক আছে, তাহলে দেখো এবার তোমাদের অঙ্কটা আরেকবার করে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি। সেটা বাংলাতে ব্যাখ্যা করছি না, সেটা তোমাদের हिंदी व्याख्या कर दीजिए और इंग्लिश है। यहाँ पर सिंप्लीफाई का एक मैथ है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, जो यूजिंग बदमाश रूल, जो बदमाश रूल है उसका फॉलो करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है उसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डाल दिया। जैसा 3/5/6, तो इसका ये है मिक्स फ्रैक्शन, तो इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा 23/6। कैसे, 3 के साथ 6 यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई के बाद 5 उसका साथ ऐड हो, माने ऐड करने के बाद 23 मिलेगा। कैसे, 3 इंटू 6 18, 18 प्लस 5 होगा 23/6। सेम टू सेम 11 1/2, तो इसका भी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा 23/2। सेम मेथड में 1 2/3, इसका ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा 5/3। तो फर्स्ट लाइन का जो मिक्स फ्रैक्शन है उसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डाल दिया मैं। उसके बाद क्या किया, जो यहाँ पर जो बदमाश रूल है, बदमाश रूल का ऑफ का काम करना पड़ेगा। तो इसका पहले ब्रैकेट और भी फॉर विनक्यूलम और बार, तो ये बार और विनक्यूलम तो यहाँ पर ये सिंप्लीफाई का अंदर नहीं है, तो इसका उसका बाद वॉप है, तो वॉप का काम करने के लिए वॉप का आउट करना पड़ेगा, उसका रिप्लेस में मल्टीप्लाई साइन यहाँ पर देना पड़ेगा। इसीलिए एक फास्ट ब्रैकेट यहाँ पर लगा दिया। ये फास्ट ब्रैकेट का मीनिंग क्या है, जो ये वॉप का जो साइन था, जो वॉप था, तो उसका इंटू कर दिया, तो फास्ट ब्रैकेट डाल दिया। मतलब इस सिंप्लीफाई का मतलब इस लाइन का ये ब्रैकेट का काम पहले करना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रैकेट का जो अंदर यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर मिला 13/9। तो ये ना इस लाइन में 23/6 डिविजन 23/2 इंटू 13/15 डिविजन 13/9, तो इस लाइन में यूजिंग बदमाश रूल तो इसका डिविजन का काम करना पड़ेगा। तो डिविजन का काम किया, तो डिविजन साइन दे दिया और इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो 2/23। इसका भी वही किया 9/13। तो ये इस लाइन में इस लाइन का अंदर मल्टीप्लिकेशन साइन आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन साइन मतलब जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ यहाँ पर सिंप्लीफाई किया तो 1/5 मिला। ठीक है, तो कैसे कैसे काटा देखो, जो यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 23 है, कट गया। उसके बाद देखो यहाँ पर 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ठीक है, तो 13 13 कट गया। तो ऐसे करके मिला, जो न्यूमरेटर का पार्ट में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, और डिनोमिनेटर का पार्ट में ओनली 5 यहाँ पर है, तो आंसर होगा 1/5। ठीक है, तो ऐसे करना पड़ेगा। इसका बाद नेक्स्ट मैथ, तो नेक्स्ट मैथ ये है नंबर 8 का मैथ है। नंबर 8 का मैथ यहाँ पर लिखा है 1 1/2 डिविजन 2 2/3 डिविजन 3 1/4 डिविजन 4 1/5 इंटू 10 1/2 ऑफ 1/7। पहले क्या करना पड़ेगा, पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है उसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डालना पड़ेगा। तो इसका 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 1 प्लस होगा, तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 मतलब 3/2 डिविजन 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 8/3 डिविजन 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13, 13/4 डिविजन 4 5 जा 20, 20 प्लस 1 21/5 इंटू 10 2 जा 20, 20 प्लस 1 21/2 of 1/7।
तो पहले देखना पड़ेगा जो मिक्स फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन का अंदर है मिक्स फ्रैक्शन, तो वही फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसका बाद यूजिंग बदमाश रूल, यही हिसाब से तो यहाँ पर डिवीजन है, कौन सा साइन है, यहाँ पर डिवीजन साइन है और मल्टीप्लिकेशन साइन है और ऑफ है, तो ऑफ का काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ ये दोनों साइन का पहले है, वो मतलब ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ऑफ का काम माना इसका पहले करने के लिए ये लाइन सेम टू सेम ऐसे लिखना पड़ेगा, डिवीजन 8/3, 13/4, डिवीजन 21/5। तो ऑफ का काम करने के लिए फर्स्ट ब्रैकेट देना पड़ेगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट का मीनिंग है जो इसका काम, इस लाइन में इसका काम पहले करना पड़ेगा, वो आपका रिप्लेस में मल्टीप्लाई साइन डाल दिया। तो एक बार काटने के बाद क्या मिलेगा, 7×3=21, और तो नहीं काट सकता। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, डिवीजन का काम। देखो एक लाइन में 1 2 3 डिवीजन है, तो पहले लेफ्ट टू राइट में ऐसे डिवीजन का काम करना पड़ेगा। तो लेफ्ट मतलब इसका ये डिवीजन हो जाएगा इंटू 3/8 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, उसके बाद ये डिवीजन ऐसे रहेगा 13/4 डिवीजन 21/5 इंटू 3/2। ठीक है, यहाँ पर तो ये 1 2 3 डिवीजन का काम तो पहले इसका काम करना पड़ेगा, तो इसका अंदर देखना पड़ेगा तो जो सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। तो क्या करना पड़ेगा, इसी फॉर्म में रखना पड़ेगा, 3/2 इंटू 3/8, इसका चेंज करना पड़ेगा 4/13। ठीक है, तो एक और तरीका है, यहाँ पर जब इसका काम पहले करना पड़ेगा तो ब्रैकेट भी डाल सकता है, लेकिन ब्रैकेट नहीं डालोगे तो कोई बात नहीं। इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है 21/5 इंटू 3/2, इसका मैंने लिखा। तो इसके बाद देखो जो काट सकता है कि नहीं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 काट जाएगा, यहाँ पर तो 13 है, यहाँ पर 8 है, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ पर 4 था, तो 2 2 जा 4, ये 2 से के साथ ये 8 कट जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका बाद इसका काम करना पड़ेगा, तो ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर अपर में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर लोअर पार्ट में क्या है, डिनोमिनेटर पार्ट में 4×13। ठीक है, इसके बाद इस डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसका रेसिप्रोकल 5/21 इंटू 3/2। तो ध्यान देना पड़ेगा, जो जब यहाँ पर ये डिवीजन का रिप्लेस में मल्टीप्लाई साइन आ जाएगा, तो अब इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा 3/2 का, न्याची नहीं। ठीक है, तो इसका ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो काटो 3 7 जा 21, और देखो